नमस्कार बच्चों, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस। और yesterday I had given some homework to you. Did you do it? Some MCQ type of questions I gave you from the chapter 2. Did you do? Okay. कॉपी दिखाना मुझे, ठीक है? तो आगे हम इसी चैप्टर 3 को आगे बढ़ा रहे हैं और टुडे हमने क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे oogenesis. कौन सा पार्ट है oogenesis? It is a part of gametogenesis. Gametogenesis in human being is of two types: spermatogenesis and oogenesis. About spermatogenesis you have already studied. So today we are going to study about the oogenesis. What is this process called? Oogenesis. Oogenesis is the process of formation of ovum. Process of formation of ovum from the ovary. From the ovary is called oogenesis. So the process of formation of ovum from the ovary is called oogenesis. This oogenesis process is different from spermatogenesis. Spermatogenesis process started at when spermatogenesis start at puberty, but this process of oogenesis start at the fetal stage. Fetal stage is during the embryonic development of a female child. It means before the birth of a girl child. So the name is given here, the fetal stage. oogenesis कब start होता है? Before the birth of a girl child and during the embryonic development. This stage is called fetal stage. ठीक है? तो ये कब हो रहा है प्रोसेस? फीटल स्टेज में. फीटल का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में. ड्यूरिंग दिस फीटल स्टेज मिलियंस ऑफ द oogonia. oogonia मीन्स फीमेल मदर germ cell, or you can say mother female germ cell. They are called oogonia. These oogonia are diploid. All these are oogonia are diploid, and they divide mitotically and increase their number in each ovary. So at fetal stage, this process of oogenesis take place, and these cells divide mitotically. So they multiply their number. So this phase is also called multiplication phase. Multiplication phase. So here same way you can learn. जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस आपने लर्न किया था 1 से 2 और 2 से कितनी सेल बनेंगी? 4. ठीक है? तो यहाँ तक सब सेल का नंबर कितना है? डिप्लॉइड सेल है और ये सब सेल कब प्रोड्यूस हो रही है? एट द फीटल स्टेज ऑफ द fetal stage before the birth of a girl child. Then some of the cell start dividing. What is the name of these cells? Oogonia start dividing, and first mutant division take place inside that. First mutant division take place and they form primary oocyte. Now you remember here the first mutant division will not complete for long time. प्रोफेज 1 फेज है तो प्रोफेज फेज 1 फेज में बहुत लंबा टाइम भी लगता है. तो प्राइमरी oocyte का जो फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन है, इट टेक्स टाइम. And all this process at the time of you remember one thing also, primary means these oogonia at the time of before the birth of a girl child, कम से कम इनका नंबर होता है millions of the oogonia are formed at the time at the fetal development. Millions of the oogonia. क्या याद करना है आपने यहाँ पे? Millions of the oogonia are formed at the fetal stage in each ovary. Then after birth, what will happen? Some of the oogonia start dividing and enter in the stage of prophase 1 of muting first and form primary oocyte. For primary oocyte then divide muting division means 2 सेल बननी चाहिए, पर यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंस क्या है? एक सेल छोटी है साइज में, दूसरी कैसी है? बड़ी. The bigger cell is called primary oocyte and the small cell is called first polar body. And here this primary oocyte then stop dividing. To not divide means then it stop dividing and arrest in the stage. This diagram you can see the changes occur inside the ovary. This is the diagram of tears of the ovary. इसकी भी आपने स्लाइड देखनी है, जस्ट लाइक आपने टीयर्स ऑफ टेस्टिस की स्लाइड प्रैक्टिकल में करनी है, ऐसे ही प्रैक्टिकल की टीयर्स ऑफ ओवरी भी देखनी है. ये ओवरी का डायग्राम क्लियर दिखाई पड़ता है स्लाइड में. तो दिस इज द टीयर्स ऑफ ए ओवरी. हियर द प्राइमरी oocyte get arrested and form a layer of granulosa tissue around them and form. ये changes आप यहाँ देखो, primary follicle. PF मैंने यहाँ लिखा हुआ है. PF का मतलब यहाँ पर क्या है? Primary follicle. It will further form a layer around it. Then it form
secondary follicle, then it form another more layer around it, this is called tertiary follicle. ठीक है, यहाँ तक टर्सरी फॉलिकल. ये सारे चेंजेस कहाँ पर हो रहे हैं? इनसाइड द प्राइमरी oocyte when it is undergoing the first meiotic division, and these all changes occur from birth to childhood and then at puberty. At the time of puberty, when these cells start dividing, only 60,000 to 80,000 primary, means they are formed primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle. So when these changes are occur, then what is there? What is the number of primary follicle? Only the 60,000 to 80,000 primary follicle are left in each ovary. कब हो रहा है? पहले कितनी थी? Millions of the oogonia at the fetal stage. When after the birth of a child, childhood is there. At the stage of puberty, when the primary oocyte start forming a layer around it, forming a layer around it, and they start first few meiotic division, then only 60,000 to 80,000 primary follicle are left in each ovary. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर ये सेल क्या हो रही है? प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो रही है. फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है इसका, और इसने अपने चारों तरफ लेयर्स बनानी शुरू की. और प्राइमरी oocyte से फिर क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल. ठीक है, टर्सरी फॉलिकल के अंदर विद इन द टर्सरी फॉलिकल दिस प्राइमरी oocyte ग्रो इन साइज. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ देखो, प्राइमरी oocyte में क्या हो रहा है? लेयर बन रही है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल. तो विद इन टर्सरी फॉलिकल कहां तक कन्वर्ट हो गया ये टर्सरी फॉलिकल? इट ग्रो. प्राइमरी oocyte क्या हो रहा है? साइज में बड़ा हो रहा है, और यहाँ पर आके ये अपना फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट करेगा. व्हेन इट विल कंप्लीट दिस फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन, देन इट विल अगेन फॉर्म टू सेल्स, दिस बिगर सेल एंड दिस स्मॉलर सेल. द नेम ऑफ दिस बिगर सेल इज सेकेंडरी oocyte एंड स्मॉल सेल इज कॉल्ड सेकेंड पोलर बॉडी. इस पोलर बॉडी का क्या हुआ? इसका कुछ बुक में भी दिया हुआ नहीं है, और अनसर्टेन है व्हाट विल हैपन टू दिस फर्स्ट पोलर बॉडी. तो प्राइमरी oocyte के बाद क्या चेंज हो रहे हैं? ये अरेस्ट हो जाता है, अपने चारों तरफ लेयर बनाना शुरू करता है, और कन्वर्ट होगा प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में, एंड देन इनटू द टर्सरी फॉलिकल. टर्सरी फॉलिकल पे जाके ये क्या करता है? टर्सरी फॉलिकल में ये जाके अपना फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट करता है यहाँ पर, एंड देन इट विल डिवाइड एंड फॉर्म सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्रेफियन फॉलिकल. किसके अंदर है ये? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर है. सेकेंडरी oocyte इज देयर, दिस इज सेकेंडरी oocyte एंड इट फॉर्मिंग ग्रेफियन फॉलिकल. तो क्या चेंज हो रहा है? पहले क्या था? प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte से क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और यहाँ पर आगे से अपना फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट किया, एंड इट विल फॉर्म सेकेंडरी oocyte हियर. सेकेंडरी oocyte के साथ यहाँ पर इट विल कन्वर्ट इनटू ग्रेफियन, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल. और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर एक कैविटी दिखाई पड़ रही है, दिस इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंड द नेम ऑफ दिस कैविटी इज एंट्रम. इस कैविटी का नाम है एंट्रम. व्हाट इज एंट्रम? वेयर इज लोकेटेड? आल्सो लोकेटेड टर्सरी फॉलिकल, बट ज्यादा क्लियर कहां दिखाई पड़ रही है? ग्रेफियन फॉलिकल में, जो फ्लूइड से भरी हुई है, और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है यहाँ सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte में अभी सेकेंड म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा. सेकेंडरी म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट होगा जब ये फर्टिलाइजेशन होगा. तो ये कहां पर है? सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte लोकेटेड इनसाइड द ग्रेफियन फॉलिकल. आफ्टर सम टाइम व्हेन द हार्मोनल चेंजेस occur, then this Graafian follicle burst, means rupture, and release the egg. Rupture, and it will release the ovum. Here, this process is called ovulation. Ovulation, when this process occurs in human female body, this you will study when you will study about the menstrual cycle. So what is the ovulation? Ovulation is the process of release of ovum after the rupture of Graafian follicle. This process is called ovulation. ठीक है, तो समझो ovulation क्या है? Ovulation is the process of release of ovum after the rupturing of Graafian follicle. This process is called ovulation. तो here the secondary oocyte कहाँ पर है? Graafian follicle, और रिलीज हुआ menstrual cycle में जो ovum रिलीज हुआ है किस फॉर्म में है? secondary oocyte. सेकेंडरी oocyte भी अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है. रप्चर होने से पहले इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, इसे जोना पेलोसिडा कहते हैं. विल आल्सो फॉर्म ए लेयर व्हिच इज कॉल्ड जोना पेलोसिडा. Suppose this is secondary oocyte. Secondary oocyte inside this the ovum is there, and it form a layer around it. This layer is called zona
पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा लेयर। ठीक है, तो सेकंड म्यूटेट डिवीजन कब कंप्लीट होगा? व्हेन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम occur with the sperm. When the ovum is fertilized with the sperm, then only the second mutate division will complete. So this is about the oogenesis. oogenesis process कब स्टार्ट होता है? एट द फीटल स्टेज। फीटल स्टेज में बहुत सारी ओवोनिया बन जाते हैं जिनका नंबर मिलियंस में होता है हर ओवरी में, और उसके बाद आफ्टर बर्थ नो ओवोनिया और आर फॉर्म्ड और एडल्ट, देन ओनली दे विल ग्रो एंड स्टार्ट डिवाइड। तो फर्स्ट पहले क्या बना था? ओवोनिया। इसका फ्लो चार्ट याद कर सकते हैं आप। ओवोनिया कौन सी स्टेज में बन रही है? फीटल स्टेज में। ओवोनियास में जब डिवीजन शुरू होगा तो ये क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन स्टार्ट होगा। फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन ऑफ प्रोफेज एंड इट विल फॉर्म ए नंबर ऑफ लेयर्स अराउंड इट। ये अपने चारों तरफ बहुत सारी लेयर बनाना शुरू करेगा और इट विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी फॉलिकल, ट्रांसफॉर्म होगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल then will form secondary follicle। ग्रेनुलोसा की लेयर, ग्रेनुलोसा टिश्यू की लेयर जमा होती है सेकेंडरी फॉलिकल, then will transform into tertiary follicle। tertiary follicle, in tertiary follicle इसका कंप्लीट होगा फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन एंड then it will transform into Graafian follicle। Graafian follicle, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या चीज है? प्राइमरी oocyte, secondary oocyte is secondary oocyte is present inside the Graafian follicle। तो when the Graafian follicle ruptures, Graafian follicle जब रप्चर होती है तो इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte रप्चर होने से पहले अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? जोना पेलिसोडा की लेयर बना लेता है। विल फॉर्म ए लेयर ऑफ जोना पेलिसोडा इनसाइड सेकेंडरी oocyte। Second mutate division complete after the fertilizing of the sperm. So this is about the oogenesis process। ठीक है, कैसे याद करोगे? सेम में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसमें अनइक्वल सेल्स बनती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसी सेल्स बनती थी? इक्वल सेल्स बनती हैं। सपोज difference can be asked, what is the difference between spermatogenesis and oogenesis? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो लिखेंगे आप इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इधर आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम इज फीमेल गैमेट एंड हियर द स्पर्म इज मेल गैमेट। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट फ्रॉम द ओवरी is called oogenesis। First difference लिखेंगे। Second, here this process take place at puberty and here कब हो रहा है? at fetal stage। fetal stage, fetal stage is बर्थ के बाद कोई भी ओवोनिया ना बनती है ना ऐड होती है। Third process, sperms can be produced throughout the life। throughout life in the male, here only because only certain amount of oogonia, this is number 60,000 to 80,000 oogonia are left. It means the ovum can only be produced, ovum can be produced at the age of up to the age of 50 or 45। or in between you can say 45 to 50 years of age, 45 to 50 years of age in the female। The process of oogenesis can take place। Fourth, during the spermatogenesis, when the division first mutate division complete, prophase 1 of mutate division, 1 and 2 both division, equal cells are produced, equal sized cells are produced।
here after meiotic division, first meiotic division पूरा लिख लेना, unequal cells are produced. Unequal cells like one polar body, small, very small, and secondary oocyte or primary oocyte or secondary oocyte are bigger in size. ठीक है, तो इस तरह से और भी डिफरेंस आप देख सकते हैं. मेन डिफरेंस है प्यूबर्टी में होता है ये प्रोसेस, डिफिकल्ट स्टेज में होता है, इसमें अनइक्वल सेल्स बनती है, इसमें सेल्स का साइज क्या होता है, सेम होता है. इससे आप बिल्कुल कोई डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं. पहले एक सेल बनाओगे, एक से कितनी बनी, यहाँ 2 और 2 से कितनी बन रही है, 4. इस तरह से बना सकते हैं. फिर यहाँ से फिर ये डिवीजन हुआ तो ये इक्वल सेल्स बनेंगे और स्पर्मेटेड्स आर प्रोड्यूस्ड 4. यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स आर अनइक्वल साइज 1 2 3. यहाँ तक दोनों में कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ तक की जो फेजेस है ये मल्टीप्लिकेशन फेज है. दीस सेल्स आर डिवाइडेड बाय माइटोटिक. देन हियर वन सेल प्राइमरी साइड अनइक्वल डिवीजन, 1 स्मॉल 1 बिगर, अगेन अनइक्वल डिवीजन, 1 स्मॉल एंड 1 बिगर. ये डायग्राम बना करके आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. ठीक है, एक और टर्म छोड़ गई थी स्पर्मेटोजेनेसिस में, व्हाट इज सीमन. सीमन क्या चीज है, किसका पार्ट है ये, स्पर्मेटोजेनेसिस. सीमन मींस सेमिनल प्लाज्मा. Seminal plasma is the plasma which is formed by the accessory male duct. Seminal plasma and sperms constitutes together semen. This semen can be stored for artificial insemination purpose or for testability purpose. Desired semen. It means semen is the पार्ट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा विच कंटेन स्पर्म. ठीक है, तो एक और चीज बची हुई है, नाउ वी विल स्टडी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पहले आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे और उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, इसकी हेल्प से इसे बनाएंगे. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हाइपोथैलेमस क्या है, ये ग्लैंड है हाइपोथैलेमस और पार्ट ऑफ इंडोब्रेन. हाइपोथैलेमस इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, इस तरह से इसे आप सर्कल बना लें. हाइपोथैलेमस इंस्पेक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट रिलीजिंग 2 टाइप ऑफ हार्मोन, FSH and ICSH, follicle stimulating hormone and intracortical growth hormone. FSH hormone and ICSH. This ICSH hormone acts on leading cell. And this FSH hormone stimulates spermatogenesis. And its second part can also inhibit this process, inhibition. Here leading cell release another male hormone which is called testosterone. Testosterone maintains the function of, what is the role of this testosterone? Maintains overall function of overall secondary sexual characters. Secondary sexual characters in the male. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन राइटिंग समझ में आ रही है. मेंटेन ओवरऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल्स एंड आल्सो एक्ट्स ऑन एक्सेसरी डक्ट्स.
ठीक है, इसको बना लीजिए। और यहाँ पर एफएसएच हार्मोन किस पे एक्शन कर रहा है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। और इसको फिर आप इस तरह से बनाएंगे, ये मैंने यहाँ डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है, डॉटेड एरो लगाया है। डॉटेड मीन्स इनहिबिशन, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में आ जाता है। एक मिसिंग लिंक आपसे करा लेते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है, एफएसएच एंड आईसीएसएच। हियर अगेन टेस्टोस्टेरोन को पूरा एरो लगाएंगे आप और उसको इस तरह से ले जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, डॉटेड स्ट्रक्चर, जिसको आपने शो किया नेगेटिव फीडबैक, और यहाँ पूरा एरो लगाया हुआ है और इसको आप लिखेंगे पॉजिटिव फीडबैक। So this is the flow chart of hormonal control of male reproductive system. Hypothalamus release a hormone here which is called GnRH, gonadotropic releasing hormone, GnRH। इनकी सब की फुल फॉर्म लिख लेना आप, GnRH, FSH, ICSH, सब 11th की बुक में दिया है लास्ट चैप्टर में, आप इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे। फुल फॉर्म ऑफ GnRH और FSH एंड ICSH, फुल फॉर्म आपने लिख देंगे। गिव द फुल फॉर्म ऑफ GnRH, FSH एंड ICSH। Anterior pituitary release this hormone and regulate the function of male reproductive system। ठीक है, क्लियर है ये। नाउ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ तक सही ही रहेगा। कौन ग्लैंड है ये, हाइपोथैलेमस, एक्सॉन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड release two hormone LH, FSH, LH and FSH। LH acts on ovary, इसको फंक्शन करेगा ये ओवरी पे, एंड रिलीज द हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्ट्स ऑन यूट्रस, ये आप बनाइए। ठीक है, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, GnRH, एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजिंग टू हार्मोन LH and FSH which acts on the ovary, and then ovary release two hormone estrogen and progesterone which acts on the uterus। यहाँ पर भी वही आप सेम बनाएंगे, इधर से ले जाएंगे, पूरा एरो लगाएंगे एस्ट्रोजन पर, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऐसे छोड़ेंगे और यहाँ पूरा एरो लगाया, इसलिए आप लिखेंगे सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, दूसरी तरफ एरो लगाएंगे आप थोड़ा इस तरह से, डॉटेड, एंड हियर क्या लिखोगे, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक। So this is hormonal control in the female, this is the hormonal control of female reproductive system, male reproductive system hormone control and female reproductive system hormone control। एक दो नंबर में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। Another very important diagram यहाँ पर, अभी just now I taught you about the oogenesis। तो case of ovary मैंने आपको साथ साथ बनाया था। ओवरी में आप इस तरह से आप उसका डायग्राम बनाते चलेंगे और लेबलिंग करेंगे। ठीक है, आपकी बुक में भी बहुत अच्छा डायग्राम दिया है। यहाँ पे क्या बनेगा, ओवोनिया है, यहाँ पे बहुत सारी ओवोनिया, ओवोनिया कन्वर्ट इनटू प्राइमरी फॉलिकल, कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, tertiary follicle, internal cavity is there, then it form Graafian follicle, internal cavity is there, then it will burst and ovum is released, this process is called ovulation, then they further convert into, they start degenerating, Graafian follicle start degenerating like this, and these are called, labeling करोगे आप, ये क्या था, oogonia, primary follicle, this primary follicle, it will form secondary follicle,
क्या बनेगा ये? सेकेंडरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होगी? टर्सरी फॉलिकल. Tertiary follicle then will convert into this structure. What is this? Mature Graafian follicle. Graafian follicle. It will rupture and release the ovum. Secondary oocyte है. Ovum नहीं यहाँ पर. क्या है ये? Secondary oocyte. Secondary oocyte में चारों तरफ लेयर बनाता है, जो पहले सुना की. And this is ruptured Graafian follicle. Ruptured Graafian follicle. Ruptured Graafian follicle. These ruptured Graafian follicle start degenerating. It will form corpus luteum. Corpus luteum. Corpus luteum then again form a hormone which is called progesterone. Progesterone hormone. Progesterone hormone. If the ovum is fertilized by the sperm, if the fertilization will occur, then this corpus luteum produce progesterone hormone which overall maintain the 9th pregnancy. So the another name of this progesterone hormone is this is also called pregnancy hormone. And after this it will degenerate. If it is not fertilized, then they are removed through the menstrual fluid from the body. So this is the diagram of ovary is given in your book. इसका well level diagram बनाएंगे and this is very important diagram from examination point of view. So this is the diagram of TS of ovary. इसका स्लाइड भी देखेंगे. इसके अलावा बुक में भी आपके कुछ सुंदर सा अच्छा सा डायग्राम लेवल डायग्राम दिया है. तो बच्चों आप इसको लिखेंगे, इसके अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाएंगे. तो दिस इज अबाउट द गैमेटोजेनेसिस, ऑल अबाउट द गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए. ओके.